last lecture we have studied modified Eilers method. Any problem with the modified Eilers? किसी को कोई problem है उसमें और is it clear? Yes. अभी तक जितना पढ़ा है वो क्लियर हो गया है? No response. Yes or Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So today we will study Milne's method, or this method is also known as predictor corrector method and PC method. तो इस मेथड में हम क्या करेंगे? जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें हम सबसे पहले उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे और फिर उस प्रेडिक्टेड वैल्यू को यूज करने के बाद हम उसकी करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे. सो वी नीड 4 पॉइंट्स, 4 पेयर ऑफ स्टार्टिंग वैल्यूज इन दिस मेथड. और अगर वो स्टार्टिंग वैल्यूज मुझे गिवन नहीं है तो फर्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट दोज वैल्यूज using the previous methods जो हमने पहले पढ़े हैं, whether you can evaluate using the Eilers method, Taylor series method, जो भी आपको मेथड सही लगे तो उससे मुझे वो वैल्यूज इवैल्यूएट करनी होंगी. स्टार्टिंग में x0, y0, x1, y0, y1 ऐसे मेरे को 4 पेयर चाहिए होंगे इस वाले मेथड को अप्लाई करने के लिए. अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गिवन नहीं है तो सबसे पहले वो इवैल्यूएट करना होगा. तो आई एम नॉट गोइंग इन वेरी मच डिटेल, मैं आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बता रही हूँ कि प्रेडिक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है और करेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है. तो सबसे पहले जो इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे yn + 1 raised to the power p. This is the notation for the predicted value of yn + 1 and it's equal to, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेडिक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, and it's equals to yn - 3 plus 4h/3 multiplication with 2f of n - 2 minus f of n - 1 plus 2f. So this is the formula for the predicted value. Now next इसी की मेरे को करेक्टेड वैल्यू निकालनी है. तो करेक्टेड वैल्यू निकालने का जो प्रोसीजर होता है, मेरे पास सपोज इक्वेशन है, ये है dy/dx = f of xy. इसी तरीके की इक्वेशन होगी जिसको हमें सॉल्व करना है एंड द कंडीशंस गिवन आर x = x0, y = y0. Mute your mic. So the corrected value of I told you everyone please join 5 minutes before the scheduled class. Yes, ma'am. थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है इसलिए. The corrected value of yn + 1 is obtained. करेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे इस वाली जो इक्वेशन है इसको मुझे इंटीग्रेट करना है एंड between the limits xn - 1 to xn + 1 and then apply the Simpson's rule.
So I'm not going in the proof, I'm directly writing what we have obtained after the integration. So the corrected value of yn plus 1 is obtained by integrating the both sides of, this is, I'm taking equation number 1, this is equation number 2, by integrating both sides of equation 2 between the limits xn plus 1, sorry, xn minus 1 to xn plus 1, and then using Simpson's rule. Mute your mic. And then using the Simpson's rule, and after applying the Simpson's rule, we will get the predicted value by, which is denoted by n plus 1 c. This c denotes corrected value. This c denotes the corrected value, and this p denotes the predicted value of yn plus 1, and it's equals to yn plus 1 by n minus 1 plus h by 3 fn minus 1 plus 4 fn fn plus 1 star. This is the corresponding corrected value. Now, what are these functions? So in equation first and third, this is equation first and third. In equation first and third, fn denotes f of xn by n, and fn minus 1 will be equal to xn minus 1 by n minus 1. This is fn minus 1, and fn minus 1 denotes f of xn minus 1 by n minus 1. In the same way, fn minus 2 is equals to f of xn minus 2 by n minus 2, and this star fn plus 1 star, this is obtained using the predicted value, and it's equals to f of xn plus 1 by n plus 1 predicted value. तो जब भी मुझे करेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो करेक्टेड वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए मुझे हमेशा यहाँ पर प्रेडिक्टेड वैल्यू तो इवेल्युएट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज दिस करेक्टेड वैल्यू कंसिस्ट ऑफ fn plus 1 star, and which is obtained using the help of the predicted value. That's why the method is known as the predicted and the corrected value, because the corrected value depends on the predicted value here. Is it okay? Is it clear? Yes, ma'am. इफेक्टिवली इस मेथड को अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि मुझे करेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है और मुझे उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है. एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर मुझे 4 पेयर्स ऑफ सेट्स चाहिए स्टार्टिंग वैल्यूज की, बिकॉज यहाँ पर ये आप देखोगे जो फंक्शंस में यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, तो f of n that will be denote f of, suppose n is taking at 0, then it consists of f of function की वैल्यू at x नॉट एंड y नॉट. तो इनिशियली मेरे को 4 सेट्स चाहिए. अगर वो सेट्स गिवन नहीं होंगे
तो फिर मुझे पहले किसी भी प्रीवियस मेथड से वो सेट्स इवेल्युएट करने होंगे. Okay, so I'm going to take a problem based on the Milnes method, and it will be more clear by solving the problem. Now the question is, question 1, and use, कभी कभी खाली मिलनेस मेथड लिखा होता है और कभी कभी इसको प्रेडिक्टर एंड कैरेक्टर मेथड दिखाता है, so no need to confuse. Use Milnes method, solve dy by dx is equal to x minus y square at x is equal to 0.8. Given that y is 0 means the value of y is 0 when x is 0, y is 0.4 is 0.0795, y 0.2 is 0.02, and y 0.6 is 0.1762. ओके, तो यहाँ पर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड एट x इज 0.8. तो इनिशियली जो मैं बोल रही थी मिलनेस मेथड में मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, इट्स ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो कैसे सॉल्व करना है इसको. फंक्शन की वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है, हियर वी हैव, कितना दे रखा है फंक्शन? x minus y square. X minus y square. It's given in the problem, and the 4 pairs of the values are given as. Ma'am, this is f dash x y, no? No, dy by dx denotes, this is f derivative की जो value है, this is f of xy. F of xy is x minus y square. Okay? Okay, ma'am. Yes, ma'am. हम जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, whether initial value problem or the boundary value problem, the general problem is dy by dx is f of xy. So whatever the relation between the function is given, it is denoted by f of xy. This is the function of f of xy. And okay. Yes, ma'am. And 4 set of pairs are given as initial x naught y naught, एक सेट ही हो गया, दूसरा सेट x1 y1, तीसरा सेट होगा यहाँ पर, थर्ड सेट विल बी x2 y2 and x3 y3. Okay, that is, Yes, ma'am. this is 0 0 first set, second set is 0.4, 0.4, 0.2. 0.2, 2 के बाद 4 आएगा ना. अच्छा. Yes, ma'am. 0.2, 0.02, and you can see the difference is 0.2 points. होगा मेरा यहाँ पे 0.2. Okay. Third set is 0.4,
0.07 0.0795. and the fourth set will be 0.6 0.176. अगर ये नहीं गिवन होता तो पहले मुझे ये सेट्स इवेल्युएट करने पड़ते. हुमान सिंह एंड गौरव, प्लीज थोड़ा टाइम पर आप ज्वाइन करो क्लास को, इतनी डिले नहीं. नेक्स्ट टाइम मैं नहीं अलाउ करूंगी बीच में. Now, the formula for the predicting the method is, we know that by Milne's predictor formula, we have, इसे डिनोट करा है हमने प्रेडिक्टर को by n plus 1 p, and it's equals to by n minus 3 4h by 3 twice of fn minus 2 minus fn minus 1 plus twice of fn. ये मैंने आपको भी लिखवाया है, ये प्रेडिक्टर के लिए ये फॉर्मूला होता है. Now, in order to evaluate the predicted value, हमारे पास जो इनिशियली पॉइंट गिवन है वो 0 गिवन है, फर्स्ट x नॉट एंड y नॉट. So I'm going to write down the value of n is 3 here. तो जो यहाँ पर मेरे पास predicted value आएगी, that will be by 4. So by substituting the value of n is equals to 4h by 3 twice of n की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करा है, 3 f of 1 हो जाएगा minus f of 2 plus twice of f of 3. अब इफेक्टिवली मुझे क्या क्या इवेल्युएट करना है. आई नो द वैल्यू ऑफ y नॉट पता है, h पता है, f1 इवेल्युएट करना है, f2 इवेल्युएट करना है एंड f3 इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो आप देखो कि मैंने जब इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया था, तो fn is f of x and y, f of x and yn. So f3 means f of x3 y3. Okay. Yes, ma'am. Now, f naught is f of x naught y naught. f1 means f of x1 y1. X1 y1. f2 is f of x2 y2, and f3 is f of x3 y3. Now it's given that f of xy प्रॉब्लम में दिया हुआ है मेरे को, which is x minus y square. Okay, तो x naught y naught पे कितना होगा फंक्शन, x naught minus y naught square from the given function. In the same way, this is x1 y1 minus y1 square, X1 minus y1 x2 y2 minus y2 square and x3 minus y3 square. minus y3 और ये सारे पॉइंट्स मेरे को पता है, ये जो हमने स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, हमें 4 पॉइंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. सो वी नो ऑल दीज पॉइंट्स, substituting the values and find out the values of f0, f1, f2 and f3. इस टाइम का क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो कृतिका एंड नील, तो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए ज्वाइन कर रहे हो. It's going to be over soon. Now
x नॉट एंड y नॉट इज इट्स 0. इनिशियली हमें पॉइंट कितना दे रखा है 0. 0 दिस इज 0.2 minus 0.02 whole square, and this is 0.4 minus 0.0795 whole square, and in the same way this is 0.6 minus 0.1762 whole square. So evaluate it. तो evaluate करके क्या आ रहा है? जो F1 है ना वो 0.1996 आ रहा है. 0.1996 and F2 is 2 सेकंड. कैलकुलेटर लेके बैठा 0.3936. 0.39 round off it will be 37. And, जब भी लिख रहे हो आप 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमें हमेशा लिखना है. जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं तो डू राइट अप टू 4 और 5 डेसिमल प्लेसेस. सो इट्स 5 6 8 9. नाउ इसी वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे प्रेडिक्टर मेथड में, इस फॉर्मूले में. यहाँ से देखो क्या रहा है. तो y4p is equals to y naught is 0 and Yes, ma'am. value of h is 0.2. 0.2. तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 0.8/3. 4/3 मल्टीप्लीकेशन विद 0.2. अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ. ट्वाइस ऑफ f1 इज 0.1996 minus f2 is 0.3937 plus twice of f3 is 0.5689. So this is my predicted value. इसको evaluate कर लो आप. It's 0.8/3 and I'm writing down directly. इसको solve करने के बाद जो आएगा वो value आएगी 1.1433 and it's equals to 0.3049. So this is the predicted value of given problem. Now अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू निकालनी है. तो करेक्टेड वैल्यू के फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमारे पास करेक्टेड वैल्यू का है वो ये है yn minus 1 plus h/3 fn minus 1 plus 4fn fn plus 1 स्टार. तो मुझे इफेक्टिवली यहाँ पर जो इवेल्युएट करना है fn plus 1 स्टार इवेल्युएट करना है. fn plus 1 स्टार इसकी जो वैल्यू है यू कैन सी इन द फॉर्मूला. fn plus 1 स्टार इज f of xn plus 1 yn plus 1 प्रेडिक्टेड वैल्यू. तो जो वैल्यू निकल के आई है उसका यूज यहाँ पर हो रहा है. Again, I'm putting n is equals to 3 here. So 5 4 put n is equals to 3. I'm getting y4 corrected value, y naught plus h/3 f2 plus 4f3 plus 4f3 f4 star. plus f4 तो f2 हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी. f3 भी हमने अभी पहले इवैल्यूएट कर लिया है. मुझे सिर्फ f4 स्टार को इवैल्यूएट करना है. तो f4 स्टार मींस क्या होगा? यस मैम अपन है ना n की जगह तो 3 रख रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला लिखा ना आपने y n minus 1 है तो y2 आएगा ना. y2 आएगा. y नोट की जगह f4 स्टार इज f of x4 y4 प्रेडिक्टेड वैल्यू जो मैंने अभी इवैल्यूएट करी है. ठीक है. इट मींस
फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू हमारी है, इट्स गिवन इन द प्रॉब्लम, x4 इज 0.6 एंड जो अभी प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है मेरी ये 0.3049, ठीक है, 0.3049, इट मींस इट्स इक्वल्स टू कितना होगा, दिस इज x4 माइनस y4 मैम स्क्वायर। 0.6 तो x3 है ना, x4 कैसे है? x4 है ना, नहीं x4 ही 0.6 है, 0 वाला 0 लेना है। सही तो लिख रहे हैं। हाँ मैम सही लिखा है आपने तो। So it's equals to 0.6. No. First मैम point 0.8 होगा ना? 0.8 उसी 0.8 होगा। yes. नीचे पॉइंट मेरे पास नहीं होगा। एक मिनट प्लीज म्यूट योर माइक। फर्स्ट पॉइंट जो था वो 0 था, सेकंड 0.2, देन 0.4, देन 0.6, दिस इज x0, x1, x2, x3 और प्रॉब्लम में जो मुझे प्रॉब्लम इवेल्युएट करनी है वो x इक्वल्स टू 0.8 विच इज माय x4, ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा 0.8, ठीक है, x4 माइनस y4 स्क्वायर y4p, तो ये हो गया 0.8 माइनस 0.3049 स्क्वायर। अब ठीक है, हाँ इसको जो सॉल्व करके आएगा वो ये आएगा 7070। तो यहाँ से मेरी करेक्टेड वैल्यू आ गई, इट इज डिनोटेड बाय y4c एंड इट इज एट 0.8 पर ही इवैल्यूएट हो रही है। तो y2 की वैल्यू जो है y2 कितना है, x2 and y2 0.0795, ये y2 है, h is 0.2 डिवाइडेड बाय 3, f2 हमने इवैल्यूएट करा था पहले तो ये आया था इवैल्यूएट होके 0.3936 एंड f3 इवैल्यूएट होकर आया है 5689 और यहाँ से मेरा स्टार आ गया है 4 स्टार एंड इट्स वैल्यू इज 0.707। तो हम इसको इवैल्यूएट कर लेंगे एंड दैट विल बी द प्रिडिक्टेड वैल्यू 0.2 by 3, 3.3765 and we will get 3.045. So this is Milne's predictor and corrector method. इस मेथड से इवैल्यूएट करने के लिए हमेशा हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, अगर पॉइंट्स नहीं है तो सबसे पहले पॉइंट्स इवैल्यूएट करने हैं, देन find out the predicted value and with the help of predicted value we will evaluate its corrected value. So मैं एक प्रॉब्लम और लिख रही हूँ, so do try this problem. Question is use Milne's predictor corrector method to obtain y to obtain y 0.4 by solving dy by dx is equal to
twice e raised to the power x minus y, and it's given that y of 0 is equals to 2, मतलब इनिशियली x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 2 दे रखी है. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट यार. y 0.1 is equals to 2.01, y 0.2 is equals to 2.04, y 0.3 is equals to 2.09. तो यहाँ पर ये x0 y0 दे रखा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हमें 0.4 पे निकालना है. अगेन हमें कौन सी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालनी है? y4p एंड y4c. ओके, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसी के पैरेलल हमें इसको करना है. तो डू इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ, एंड प्लीज डू द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को कर लेना सब लोग, बिल्कुल उसी के पैरेलल करनी है. सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास एक लास्ट मेथड हमारे पास यहाँ बचता है, विच इज आरके मेथड. आफ्टर दैट numerical solution of ODEs will be completed. Okay, तो हम वो नेक्स्ट. मैम ये जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया ना, हाँ मैम इसमें जो ये लास्ट में इसको इवैल्यूएट करने पे 0.3046 आ रहा है. फाइनल आंसर. हाँ, इसको इधर आपने इवैल्यूएट करके ये जो लिखा है ना 3.045 कैसे आएगा मैम? आप अपने आप चेक कर लेना, चेक इट योरसेल्फ. यस मैम, मैंने अभी किया ना तो 0.3046 आ रहा है. क्या रहा है, मे भी गड़बड़ हो सकता है. ठीक है. यस मैम. और कोई प्रॉब्लम? इज दिस मेथड क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. अभी हाँ, अटेंडेंस के साथ अपनी ब्रांच जरूर मेंशन कर देना. और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, प्लीज डू सबमिट ऑन टाइम. ठीक है, अब की बार लेट नहीं चलेगा किसी का भी, तो उसको टाइम नहीं सबमिट कर देना. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. So next class will be on Thursday. Okay.